عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور کچھ وائرل ویڈیوز اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی آپ سے اپیل کروں گا۔ ضرور اس پر توجہ کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ایسے حالات میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ہولی کے درمیان میں مسلم خواتین پر جو پھینکے گئے رنگ پھینکا گیا یا پانی کے جو بھی ہو سکتا ہے اس کو لے کر کے ایک شخص نے جس کا نام راکیش رنجن ہے، یعنی کہ ایک کارٹونسٹ ہے، اس نے کارٹون بنایا اور اوپر میسیج لکھا کہ اونلی اس سے پہلے والا ایک اور دکھائیے، تھرو اونلی بھگوا رنگ، یعنی اس سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مسلم خواتین پر پھینکا جا رہا ہے رنگ، وہ تمام ہندوؤں کی وہ کرتوت نہیں ہے، بھگوا متعصب ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا جن کا رنگ بھگوا ہے وہ اس کو پھینکے، ایک الگ وہ پیغام دینا چاہتا تھا۔ لیکن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نفرت پھیلانے والی ایک خاتون نے اس کو کس طرح بدلا دیا دیکھیے، اور اوپر لکھا اونلی سٹونز پلیز، یعنی وہ مبینہ طور پر اس کارٹون کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو دعوت دے رہی کہ وہ مسلم خواتین پر پتھر پھینکے، اور اس کا نام ہے ترپتی گرگ۔ خود ایک عورت ہے اور دوسری خواتین پر پتھر پھینکنے کا ایک پیغام وہ ایک کارٹون والی چیز کو چینج کر کے پیش کی ہے تو بڑی باریک چیز، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن گہرائی میں جائیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس وقت نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک کارٹون کچھ اور پیغام دیتا ہے، اس کی اس تحریر کو ہٹا کر کے صرف ایک تحریر لکھ دی جاتی ہے۔ اس تحریر کا کتنا گہرا مطلب ہوتا ہے کہ رنگ صرف کیوں پھینک رہے ہو، پتھر بھی پھینکو، یہی اس کا پیغام تھا۔ اور ایک خود عورت ہے ترپتی گرگ، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہ سوشل میڈیا میں نفرت پھیلاتی ہے۔ جب آپ ٹویٹر میں ہوں اور اس طرح کی خواتین اس طرح کی نفرت پھیلانے والے ہوں تو اس کو ضرور رپورٹ کریں، اور جو متعلقہ پولیس تھانے ہوتے ہیں ان کو جو ہے ٹیگ کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ کم سے کم اپنی ذمہ داری تو نبھا سکتے ہیں ہم لوگ۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت یوکرینی جو اسلام مخالف یوکرینی مورخ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ الیگزینڈر اسٹیپینکو نامی اس کا نام ہے، یوکرین سے اس کا تعلق ہے۔ اس کی خبر دینے والے نے کہا ہے کہ لگاتار اسلام مخالف جو ہے تاریخ بیان کر کے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص مغربی دنیا میں نفرت پھیلانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اسلاموفوبیا کا شکار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اسلام سے نوازتا ہے۔ اس کا اسلام قبول کر کے کلمہ شہادت کی ورد کرنے کی ویڈیو مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ سوچا کہ میں آپ کے اس کو سامنے رکھوں، اس کے کلمہ شہادت کے ورد کرنے کا، دہرانے کا یہ منظر آپ دیکھیں۔ اس کا نام ہے الیگزینڈر اسٹیپینکو۔ اب اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا نام رکھا گیا اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی، لیکن ضرور кहा گیا ہے کہ جو ہے اسلام مخالف یوکرینی مورخ نے اسلام قبول کیا۔ آپ اس کو دیکھیں۔ Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Ашхаду алла иляха
إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله يثبتنا وإياك. Я очень рад. Мы как рады. Сколько год работает? नाज़रीन गिरामी, होली के इस सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा मुस्लिम खवातीन के साथ साथ बैरून मालिक से आई हुई खवातीन के साथ भी बदतमीजी हुई, छेड़खानी हुई और एक जापानी खातून की जो है वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसके साथ ग्रुपिंग की गई थी। अब जो है इस सिलसिले में पुलिस ने जो है 3 नौजवानों को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। इसकी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये दिल्ली में पेश आया हुआ मामला था। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि जो है इस वक्त जो पैदल हज के लिए निकले हैं शिहाब भाई, वो जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर में गए, चूंकि पाकिस्तान में उनको पैदल चलने की इजाज़त नहीं दी गई, जैसे वो दाखिल हुए फिर उनको फौरी तौर पर एयरपोर्ट ले जाया गया और इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी देखने में मिली सोशल मीडिया में। उसकी तफसीलात आप लोग जानते हैं। फिर उनको बराह रास्त बल्कि तैयारे के ज़रिए से ईरान भेजा गया था। इन्होंने ईरान में 1 महीने तक पैदल चलने के बाद अब इराक पहुंच चुके हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ईरान में जो है नेट यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत सारे वेबसाइट्स वहाँ खुलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है पाबंदियाँ इस चीज़ पर, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि ईरान पर किस तरह से जो है मुख्तलिफ ममालिक के जानिब से एक तो पाबंदियाँ हैं और ख़ुद ईरान भी जो है वो बहुत सारे जो है साइबर अटैक से बचने के लिए इस तरह की पाबंदियाँ नेट पर और बहुत सारे वेबसाइट्स पर लगाए हुए हैं। इस वजह से वहाँ से आप जो है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकते, करना भी है तो जो है बहुत ज़्यादा शराइत होते हैं। इस वजह से जो है शिहाब भाई इस वक्त जब वो इराक पहुँच चुके हैं और इराक पहुँचने के बाद जो है वो खुशी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से वो 1 महीने तक वहाँ चलते रहे और वो बाकायदा जो है वो अब बहुत खुशी के साथ वहाँ तक पहुँचते हैं और इराक से अब उनका सिलसिला पैदल चलने का जो है शुरू हो जाएगा और वो मुख्तलिफ इलाकों में भी जाएंगे और वो दुआओं में याद रखने की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी उनकी आवाज़ के साथ उनकी तफसीलात जो आई हुई है इराक से उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद लौटेंगे। दुआ में याद, दुआ में याद, दुआ में याद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सबको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नफर सपोर्ट इंडिया में, पाकिस्तान में, ईरान में। पाकिस्तान बस मेरे को थोड़ा चलने के लिए वीजा दिया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ईरान में अच्छा चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ईरान में मेरा हसीब भाई ज्यादा हेल्प कर लिया। इंडिया में जुनैद भाई, अयूब भाई, मुश्ताका जी केरला, मुश्ताका जी कर्नाटका, ज्यादा नफर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे को हेल्प कर लिया। आपका मोहब्बत में इंशाअल्लाह, आपका दुआ में मैंने याद रख। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, आज केरला से एक बहुत ही भयानक सड़क हादसे की एक वीडियो सामने आई है, बल्कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो है। किज़ावेल्लूर और पथनामथीथा नामी जिले में अहम शाहरा पर यह मामला पेश आया। कार से यहाँ की केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की कॉरपोरेशन की बस टकरा जाती है। टकराने के बाद वहाँ मौजूद एक जो है चर्च की गेट से टकरा करके पूरे वहाँ मौजूद पिल्लर वगैरह उस पर जो है गिर जाते हैं। एक भयानक मंजर जो है सीसीटीवी कैमरे में जो है महफूज हो गया। तो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है केरला के हुकूमत की जानिब से और आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए हैं जिसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। नाज़रीन गिरामी, साउथ में जितनी रियासतें हैं वो अपनी ज़बान को लेकर के और वहाँ के मकामी लोग ज़बान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा संजीदा होते हैं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हिंदी बेल्ट से आए हुए होते हैं वो जब कन्नड़ा बात नहीं कर पाते या दबाव बनाते हैं हिंदी बोलने के लिए तो जो है वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। ऐसी एक वीडियो आज कर्नाटक में बहुत ज़्यादा बेंगलुरु की वायरल हुई, जहाँ पर जो है एक रिक्शा ड्राइवर ने उत्तर भारत से आने वाले कुछ मुसाफिर को बिठा लिया और वो मुसाफिर जो है
रिक्शा ड्राइवर पर हिंदी बात करने का दबाव बना रहे थे, तो रिक्शा ड्राइवर एक तो उनसे नाराज हुआ, अंग्रेजी में उसको डांटा भी और उनको नीचे भी उतारा और ये कहने लगा कि आप हमारी रियासत में हैं, आप अगर हमारी रियासत में हैं तो हमारी ज़बान बात करें, आप अपनी हिंदी ज़बान हम पर बोलने के लिए दबाव ना डालें। ये कहते हुए अंग्रेजी में वो जो है पैसेंजर को डांटने की ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप इसको थोड़ा सा सुने, फिर मैं लौटता हूँ। Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Beggars, North Indian beggars. Why we will You speak people in are North Kannada? Indian beggars. Why you come to Karnataka? This Okay. is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay, okay, okay. Why should I speak in Okay, Hindi? okay. नाज़रीन गिरामी, लालू प्रसाद यादव पर हुई छापामार कार्रवाई को लेकर के अब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक मरकजी रेलवे के वजीर लालू प्रसाद यादव उनके साथियों के हाथे पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे उनकी रियासत में महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद का हिस्सा होने का नतीजा है। यानी चूंकि उन्होंने बीजेपी से अपना रब्त तोड़ लिया, इस वजह से उनको डराने के लिए ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन हम जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर बयान जारी किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2017 के बाद से 5 साल तक कोई छापा नहीं मारा गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी सादा सी वजह यह है कि मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं। इस तरह के छापे हमें खौफजदा नहीं कर सकते और हमारी हुकूमत बिहार को बआसानी संभालती रहेगी और उसकी तरक्यात के लिए काम करती रहेगी। ये कहते हुए उन्होंने जो है बीजेपी जो इस वक्त ईडी के जरिए से मुख्तलिफ लीडरों के घरों पर छापामार कार्रवाई करके एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और उसको वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, औरंगाबाद में औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर के लगातार एहतिजाजात जारी है, आप जानते हैं। अब इस सिलसिले में यहाँ की हुकूमत ने जो है इस वक्त इम्तियाज जलील और 1,500 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुल्म सितम की कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, पुलिस की इत्तलात के मुताबिक मराठवाड़ा के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने के खिलाफ एहतिजाज के सिलसिले में औरंगाबाद लोकसभा के रुकन असम्बली इम्तियाज जलील और 1,500 से ज्यादा अफराद के खिलाफ जुमा को एक मुकदमा दर्ज किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट ने यहाँ कलेक्ट्रेट से जुबली पार्क तक एक कैंडल मार्च की क़ियादत की थी और मुजाहिरीन से खिताब किया था, जिसमें हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत करते हुए जो नाम बदला गया है उसके खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया था। इम्तियाज जलील जहांगीरवार और 1,500 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ ताज़ीरात हिंद और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की दफात के तहत गैर कानूनी इज्तिमा के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि जो है लोगों ने जब इस खबर को सुना तो कहा कि जो एहतिजाज करना हर शहरी का अपना हक है, वो जो है पुरअमन अगर एहतिजाज करता है तो उस पर मुकदमा कैसा। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत ये जुल्म सितम अपनाने की कोशिश कर रही है। वही नाज़रीन गिरामी, आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी ये हैदराबाद को भाग्य नगर लिख कर की जो है एक अलग ही तरह का जो है तनाज़ा खड़ा कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है इस वक्त नामों के साथ छेड़छाड़ करके न जाने इससे वो लोग क्या समझ रहे हैं, मुतासिब ज़हनियत रखने वाले, कि इससे तारीख बदल दी जाएगी। ये देखिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंजीनियरिंग की सेमेस्टर 3rd यानी तीसरे वाले सेमेस्टर इम्तिहान के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्य नगर लिखा गया। उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मेहर ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मकतूब रवाना किया है। मकतूब में बताया गया कि लफ्ज भाग्यनगर फिरकावाराना हसास नौयत रखता है और हैदराबाद के बाशिंदों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम हैदराबादी आवाम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। आपके शोबे ने गैर ज़रूरी इकदाम किया, हमें उम्मीद है कि इस ज़िम्न में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, नाम बदल करके इस वक्त मुतासिब ज़हनियत रखने वाले लोग समझते हैं कि तारीख़ को मिटा सकते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में मिटा पाएंगे? उनके नामों से मौसूम होने वाले लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की ज़मीन और किले वगैरह जो मौजूद है, क्या उसको उखाड़ फेंकेंगे? ये अहम तरीन सवाल है। मुझे इजाज़त दें नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार,
بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔